शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात्। Om Shanti. Today we assemble here to celebrate the life and the journey of Alka Raghuvanshi ji, an artist, a journalist, a friend, a mentor. She fitted the role perfectly, and today we here celebrate her divine personality, her love, her laughter, her friendship with everyone. So today we are going to talk to her family, her friends, her people whom she loved so much, and let's see what they have to talk about her. Let's start with her sister, Manisha Gawad. Alka Raghuvanshi. The legend has gone, yet she remains with us in our hearts forever. Through her works, through her books, through her paintings and saris. She has worked very hard to bring all the combined arts together over the last 40 years. Tirelessly and dedicatedly, she has brought a lot of difference in the way people think about the arts. I feel that the world would have been a different place had it not been for Alka. Arts would have been a different place had it not been for Alka. Today we pay homage and a tribute from us as Combined Arts Together, a vision that she had and cherished. Alka was my mother, yet my sister. She taught me a lot of things as I grew up. She taught me how to like arts. As I was a little child of 3, she used to take me along with her to see various exhibitions and various shows and various recitals. Something that from a very early age started getting me interested into the arts. Initially, professionally, when I joined aviation and also worked with television for 5 years, Alka realized that that was not really my calling, but art was. And she wanted me to look at it very carefully and come back to it, come back to what my heart said. And I realized what she said was right. It was Alka who lit the lamp of me as an artist and as you see me today. Hello everyone, I'm Harika Gowade. Some even know me as Koda. And I am Alka Raghuvanshi's niece, or you can say more like a granddaughter. I have been living with her since the age of 2.5 and I am 13. Masi was not only a Masi to me, she was like another mother, a guru, an inspiration and a playmate. We used to do a lot together, like paint, watch movies, read, write, make puzzles. Masi was the one who encouraged and inspired me to paint and exhibit at a young age of 6. Lately, I took part in Mojarto NDTV online art fair. Masi was the one who introduced me to the world of art, music and dance. We used to go to many concerts together and art shows.
I'm very thankful to her for everything she did for me and my mom. You will be missed forever. Thank you. So Malika's middle sister, अनीला, और सब लोग मुझे जूली के नाम से जानते हैं। जूली नाम उन्हीं का दिया हुआ है। जब बहुत छोटे थे तो वो किताबें पढ़ती थी एडिथ ब्लाइटन, और उसमें जूली नाम बहुत पॉपुलर होता था, तो उन्होंने मेरा नाम ही जूली रख दिया। उनके बारे में जो भी कहूँ वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा है बहुत कम समय में। उनका जो थॉट प्रोसेस था अबाउट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, आर्ट, थिएटर, सभी कुछ, इतना कुछ किया है, तो उसको थोड़े से समय में कहना बहुत मुश्किल है। पर मैं बहुत ही उन पे गर्व करती हूँ। उन्होंने बहुत काम करा है और यादगार काम किया है, और मैं और इससे ज़्यादा नहीं कह सकती अभी, क्योंकि ये बड़ा इमोशनल सा मोमेंट है और इतनी जल्दी आएगा हमारी ज़िंदगी में ये भी नहीं मालूम था। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हम उनका जो साड़ी के प्रति प्यार था वो मैं जैसे उनके खून में दौड़ता था, इतना प्यार था। साड़ी के बारे में बात करना, डिस्कशन करना, घंटों सोचना, फिर डिज़ाइन करना, और इन्फेक्शस उनकी स्माइल, साड़ी के बारे में बात करते हुए इतना दिल से सोचती थी। व्हेन शी वुड टॉक अबाउट साड़ी एंड कलर्स, और बहुत सालों से उनका मन था कि वो साड़ी करें, बनाएं, डिज़ाइन करें, और वो एक्चुअली वो करें। पिछले कुछ सालों से वो साड़ी के जो वो सोचती थी वो कर रहा उन्होंने साड़ी के लिए, वट एवर शी डिड, and I think that's commendable. I don't think that उनकी कोई भी ऐसी चाहत रह गई होगी जो वो पूरा ना कर पाएँ, और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और बहुत ज़्यादा एकदम से घुल मिल जाती थी। जब आप उनसे पहली दफ़े मिले, आपको नहीं लग सकता कि वो आप उनसे पहली बार मिल रहे हो। तो उनके बारे में जो सभी लोग कहे जा रहे हैं कि ऐसे इन्फेक्शस स्माइल था, इतना वार्म थी, तो वो सचमुच सच है। और उनके जाने के बाद ये खालीपन हमेशा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा हम लोग के चाहती थी कि हमेशा हम ऐसे रहे कि बस वो देखती रहे। अगर मैं उनके सामने ठीक से तैयार होकर ना जाऊं तो उनको बहुत बुरा लगता था। सो आज उन्हीं के लिए मैंने ऐसे साड़ी पहन करके और ये बात कर रही हूँ। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम है संजय कौशिक। मैं अलका का ब्रदर इन लॉ हूँ। अलका जी की 3 सिस्टर्स हैं, अलका, अनिला, पॉपुलरली नोन एज जूली, एंड देन मनीषा. So I've been married now for 36 years and I know the family for good 38 years. So जो मेरी मेमोरी जाती है अलका के लिए, तो जब मैं अनिला के साथ डेटिंग कर रहा था तो एक दिन मैं गया वहाँ पे लंच पे, और लंच के बाद फिर मैं जब बाहर निकला तो बहुत तेज़ बारिश हो गई। जब मैं फिर वापस आया और बैठा, और थोड़ी देर के बाद जब बारिश बंद हो गई तो अलका जी कमरे में आती है और कहती है अब तो बारिश बंद हो गई। So she gave me a hint and a drift that this is time for me to leave. Unfortunately, in April, Anila और मैं दोनों were admitted to ICU for COVID treatment. और मई में एक मैसेज आता है अलका का, जो मेरे ख्याल से लास्ट मैसेज था, and she very sweetly mentioned in that कि बारिश बंद हो गई, अब जल्दी से घर आ जाओ. I wish I could say that for her as well, but I guess that she's on an onward journey, which is going to be much more peaceful and much more happier for her. But though while she was here, she celebrated her life much more, and God bless her, God bless the family. Hi, I am Chaiti Kaushik, Julie's daughter. Alka Masi's niece Jia. I have grown up going for Masi's art exhibitions and art shows, and I feel like just like her art, she has painted the canvas of her life with many different colors, like being an editor, a writer, a journalist, a curator, and an artist. I keep saying it and I'll say it again that she lived her life queen size,
and on her own terms. It's actually because of her and the fact that I've grown up in an art world, I mean, within my family, that I too have ended up in a field of art with big love for saris. Saris were a big part of Masi's life, and we all could see that. It was like saris in her blood. She did leave us too soon, but I'll remember her life full of colors, laughter, and chocolates. Hello everybody, I am Ananya Kaushik. I am nephew of Alka Raghuvanshi. I have to say a few words for her. बहुत सारी चीज़ें बोलने को, बट टाइम बहुत कम है बोलने के लिए. बहुत सारी मेमोरीज हैं अलका मासी के साथ. हमने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और हमारी दिलों में हमेशा वो रहेंगी. शी वॉज लाइक अ मदर फिगर टू मी, और शी इज़ गिवन लॉट ऑफ she's taught us lot of things in life. We really miss her. Thank you. हम सब की बहुत 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 प्यारी अलका जी, हर दिल अजीज़ अलका जी. क्या कहूँ, एक शेर याद आ रहा है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जिस तरह गए ऐसे भी जाता नहीं कोई. अलका जी, आप जैसी जो हस्तियाँ होती हैं ना, आप जैसी जो शख्सियत होती है, वो दरअसल कहीं नहीं जाती, वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं अपने चाहने वालों के दिलों में, अपने प्यार करने वालों के दिलों में. आपने कितनी ज़िंदगियों को मुतासिर किया, आप शायद खुद नहीं जानती. उनमें से मैं भी एक हूँ. आपका वो खूबसूरत प्यारा चेहरा, वो हर वक्त मुस्कुराना, हर वक्त हंसना, वो ज़िंदा दिली, वो एक बचपना, वो मासूमियत, वो भोलापन, वो जीने का हुनर, वो जीने की चाहत, वो जीने की ललक, ये सब चीज़ों से मैं बेहद बेहद मुतासिर हुई, और आइंदा भी होती रहूँगी. आप जिसे एक बार अपना लेती थीं, जिसे एक बार गले से लगा लेती थीं, उसके दिल से होती हुई उसकी रूह तक पहुंच जाती थीं. ये हुनर भी किसी किसी को आता है अलका जी. आप अक्सर मेरे कॉन्सर्ट्स में आती और कुछ नगमों की, कुछ नज़मों की, कुछ गज़लों की फरमाइश करती, और मैं भी कोशिश करती जो कुछ भी सुना पाती आपको सुनाती. एक नज़म जो आपकी बहुत फेवरेट नज़म थी और आप अक्सर सुनती थी, वो मैं आज आपको थोड़ी सी सुना रही हूँ. थोड़ी सी इसलिए क्योंकि वक्त ज़रा कम है. कुछ लाइन सुना रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि अलका जी आप जहाँ भी हैं आप सुनेंगी, और आप आज भी मुस्कुराएंगी सुनकर, आज भी खुश होंगी, और मुझे ढेर सारी दुआएं देंगी. अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ. हवा भी खुश गवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुमें हजार है, बहार पुर बहार है. कहाँ चला है साक़िया, इधर तो लौट इधर तो आ, अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा, प्याला भर के देख इधर, चमन की सिमत कर नज़र, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियाँ, तरररा, वो काली काली बदलियाँ, उफ़क़ पे हो गई आया,
वो एक हुजूम मैं कशां है सूए मैं कदा रवां, ये क्या गुमा है बदगुमा समझ न मुझको नातवा, ख्याल जुहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, 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 अभी तो मैं जवान हूँ। ये नज़्म आपको बहुत बहुत पसंद थी और आप अक्सर सुनती थी। और एक गज़ल भी जो आपकी पसंदीदा गज़ल, उसकी फरमाइश आप हमेशा करती थी, उसका मैं सिर्फ मतला सुना रही हूँ। बहुत मशहूर गज़ल है और जैसा कि पहले कहा, फिर उम्मीद करती हूँ अलका जी कि आप सुन रही हैं और आप बहुत खुश हो रही हैं। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यही दुआ करती हूँ अलका जी कि आप जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें और खूब खुशियाँ बांटें, खूब मुस्कुराहटें बांटें और हमें आने वाली ज़िंदगी में हमेशा हमेशा मुतासिर करती रहें, इंस्पायर करती रहें। लव यू। अलका मेरी बहन थी, मेरी दोस्त थी। हम लोग हर सुख दुख शेयर करते थे, सुख दुख ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, अचीवमेंट्स, खुशियाँ सब शेयर करते थे। हमने एक साड़ी भी ख़रीदनी तो वो भी शेयर करनी कि हमने क्या लिया, कैसे लिया, कहाँ से लिया, कब पहनेंगे। तो इतनी हमारी शेयरिंग होती थी। और जब मैं आज अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बहुत भर गई हूँ। अलका मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव भी थी, इतना प्यार, इतना कंसर्न था कि जब मैं उसके बैठे हुए किसी और से बात करती तो उसको सहन नहीं होता था। दीदी मेरी है, अब ये टाइम मेरा है। अलका के साथ बचपन में चाचा चाची ने बहुत मेहनत की, स्पेशली चाचा ने इसको जो एजुकेशन दी, जो संस्कार दिए, वो ऐसे थे कि इसको जर्नलिस्ट तो बनाते ही। बचपन से ही जर्नलिस्ट बन गई, आर्ट क्रिटिक बन गई। क्लास 10th 11th में ही मैं इसके अखबार में आर्टिकल्स देखती थी, क्रिटिसिज्म देखती थी, तो बहुत खुशी होती थी कि एक छोटी सी लड़की लिख रही है और इतना अच्छा लिख रही है। और धीरे धीरे ये एजुकेशन, ये संस्कार, जो उसको राइटिंग स्किल्स मिली, जो उसको बोलने की कला मिली, अपने पापा से मिली, माँ से मिली, वो बहुत अमेजिंग थी। और उसने आगे जाके उसको जर्नलिस्ट बनाया। जर्नलिस्ट, आर्ट क्रिटिक, आर्ट क्यूरेटर, आर्टिस्ट,
राइटर, न जाने क्या क्या वो बनती चली गई और बड़े ही सहज रूप में बनती चली गई। उसके लिए उसने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हो ऐसा नहीं था। उसके अंदर बहुत बहुत सारा टैलेंट था और ये सारा टैलेंट उसका एक्सप्रेशन था। तो अलका बहुत ही बिंदास, बहादुर, दुख भी आ जाए उसको भी चाह के मार के काटना। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परेशानी आई थी, हॉस्पिटल में थी, पर वो ज़िंदगी की सबसे बड़ा दुख था, पर उसको भी वो चाह के मार के निकाल लेना चाहती थी। पर उसने जो भी लिखा, जो उसने अपने को एक्सप्रेस किया अपनी पेंटिंग्स में, अपनी राइटिंग्स में, वो बहुत गज़ब का है। जब मैं उसकी पेंटिंग्स देखती थी और पेंटिंग्स के बीच में जो वो छोटे छोटे एक्सप्रेशन होता था, पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन होता था, वो बहुत गज़ब का मुझे लगता था। और मैं कहती थी अलका, ये बहुत ही सुंदर और बहुत पोइटिक है, तुम पोइट्री भी लिखना शुरू कर दो। क्या क्या कराएगी दीदी मुझसे, क्या क्या कराएगी, सब कुछ तो करती हूँ। तो वो इतना सुंदर लिखती थी। पेपर में जब उसका छपना हमने पढ़ना, और हम यही कहते थे, मैं स्पेशली कहती थी कि तेरे लिखने में एक रिदम है, एक लिरिक्स सा बन जाता है, एक इंटरनल रिदम है जो बहुत ही सहज था उसका लिखना। उसके लिए उसे बहुत सोचना नहीं पड़ता था कि वो किसके बारे में क्या लिखे। जो भी नेचुरली उसके माइंड में एक ओवरफ्लो होता था वो लिखती थी, बहुत सुंदर लिखती थी। अलका आज हमारे बीच नहीं है, मेरी बहन थी, मेरी दोस्त थी, और इतना खालीपन, इतना दुख मुझे है क्योंकि रात को जैसे ही 11 बजते थे, अगर मुझे कुछ फील होता था तो मैं सबसे पहले अलका का फ़ोन मिलाती थी। और दिन में हम शेयर करें ना करें, मुझे रात को 11 बजे के करीब देता था कि अलका भी देर तक जागती है, हम भी जागते हैं। तो 11 बजे सारी बातें 2 दिन की, 4 दिन की जो इकट्ठी हुई हैं हम कर लेते थे। और जाने से पहले मैं उससे मार्च में मिली। मार्च में मिलने के बाद 4 अप्रैल को बर्थडे पर मिलना तय था, पर नहीं मिल पाए इस कोरोना के कारण। बहुत दुख है मुझे इस बात का। फ़ोन पर लास्ट बात होती रही, दीदी जब तुम मुझसे बात नहीं करती थी, अपने ऑफिस में बिज़ी हो जाती थी, तो मुझे बहुत अकेलापन लगता था, मैं बहुत फील करती थी। मैंने उस बात की माफ़ी मांगी और कहा कि तू मेरे दिल में है। और उसने कहा कि जादू की जप्पी, मैंने कहा जादू की जप्पी ले और ठीक हो जाएगी तो फिर हम साड़ी खरीदेंगे, इंडिया इंटरनेशनल लंच करने जाएंगे। हमारी सारी बातें मन की मन में रह गई। मैंने कहा लाल साड़ी, लाल रंग इतना पसंद था कि हम दोनों लाल साड़ी पहन कर जाएंगे, पर बातें अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। अलका तुम चांद सितारों से ऊपर हो, उस डिवाइन रोशनी के बीच में हो और हम कम रोशनी में हैं। तुम हमें देख पाओगी, हम तुम्हें महसूस कर पाएंगे, तुम हमारे दिल में रहोगी, हमारी यादों में रहेगी, हम कभी तुम्हें भुला नहीं पाएंगे। लव यू अलका, मिस यू लव। अलका मेरी बिंदास साली थी और मैं उसका सुपरसोनिक जीजा। अलका से मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब वह हायर सेकेंडरी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आई थी। मेरे मन में उसकी पहली छवि है गुलाबी रंग का लखनवी कुर्ता और जीन्स। वह हर हालत में कैंपस में दाखिला चाहती थी। उसने शुरुआती दौर में ही, विद्यार्थी थी जब स्कूल में पढ़ती थी, तभी विभिन्न अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था। उसने कहा उसको दाखिला कैंपस में इसलिए चाहिए कि कैंपस में पढ़ने से उसके मानसिक क्षितिज का ठीक ढंग से विकास होगा। थोड़े प्रयास के बाद, थोड़ी भागदौड़ के बाद उसका दाखिला हो गया। उसने मिरांडा हाउस से BA ऑनर्स इतिहास में किया। अलका के हर फैसले में मैं और मेरी पत्नी शामिल थे, चाहे उसमें सहमति रही हो या असहमति रही हो। अलका हमारे परिवार की सदस्य थी।
मैं एक संयुक्त परिवार में बड़ा हुआ। मेरे परिवार के हर कार्यक्रम में, ब्याह, शादी, बच्चों के जन्मदिन, सब में वो शामिल होती थी, हंसती थी, गाती थी, नाचती थी। उसके ठहाके आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। अलका बेहद कमिटेड थी। आर्ट और कल्चर उसके मनचाहे विषय थे। इसमें उसने नई बुलंदियों को छुआ। उसने कला और संस्कृति पर अनेक पुस्तकें लिखी। ऐसी पुस्तकें लिखी जो अपनी अपनी फील्ड में मील के पत्थर हैं। अलका ने कितने ही नए कलाकारों को, पेंटर्स को, म्यूजिशियंस को प्रमोट किया, कला प्रदर्शनियाँ लगाई, औरों की कला प्रदर्शनियाँ लगाई और उन सबको कुछ नया बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। अलका मेरे साथ विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बात करती थी। वो देश की वर्तमान स्थिति से भी दुखी थी। उसका दुख एक संवेदनशील कलाकार का था। अलका बेहद साहसी थी। अलका जोखिम लेने से नहीं डरती थी। उसकी ज़िंदगी में अनेक परेशानियां आई। उसने हंसते हंसते तमाम परेशानियों को झेला। उसने कभी अपने चेहरे पर गमों की शिकन नहीं आने दी। वो खुशी में भी ऐसी थी, गम में भी ऐसी थी। वो खुश रहने के, उत्सव मनाने के मुद्दे समय ढूंढती थी कि कब किसी समय को एक उत्सव में तब्दील कर दिया जाए। अलका के मैं व्यक्तित्व की एक और खासियत की ओर आप लोगों को इशारा करना चाहता हूँ। अलका की इंडियन एक्सप्रेस में नई नई नौकरी लगी थी, थोड़ा ही समय हुआ था। जो उस समय संपादक थे इंडियन एक्सप्रेस के, अरुण शौरी, उनको किसी कारण से अखबार छोड़ना पड़ा। उनकी फेयरवेल देने के लिए गिनती के 3 लोग थे, जिनमें से एक अलका थी। अलका ने इस बात की चिंता नहीं की कि उसकी नौकरी जा सकती है। अलका प्रधानमंत्री मोदी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट की भी हिस्सेदार थी। उसकी प्लानिंग की मेंबर थी वो। उसको जब ये पता चला कि ये सब इस दौर में हो रहा है जब देश की स्थिति खराब है और कई भवन टूटेंगे, तो उसने दुखी मन से इस्तीफ़ा दे दिया और उसने कहा कि वो ऐसे किसी काम में शामिल नहीं होना चाहती जिसमें लोगों की आशा शामिल हो। अलका के जाने से हम लोगों ने बहुत कुछ खोया। एक अच्छा दोस्त खोया, एक सलाहकार खोया। आज अलका हमारे बीच में नहीं है। मेरे बेटियों को, मेरी नाती नातिनों को इतनी याद आती है, मैं कह नहीं सकता। मेरे छोटे नाती नातिन कहते हैं, वो चॉकलेट वाली नानी चली गई। हम लोगों के यहाँ कोई भी फंक्शन हो, अलका आए या नहीं आए, तो उसका भेजा हुआ बुके और एक केक मेरे यहाँ ज़रूर आता था। अलका, सच में तुम्हारी बेहद याद आती है। हम जब कभी खुश होंगे तब तुम्हारी याद आएगी, जब हम दुखी होंगे जब तुम्हारी याद आएंगी। कितनी ही तुम्हारी मधुर स्मृतियों को हम जिएंगे। एक और आज तुम्हें श्रद्धांजलि देते हुए मन बेहद भावुक है, दुखी है, परेशान है। श्रद्धांजलि कैसे दूं जो जिसके साथ हमने ज़िंदगी के बेहतर पलों को जिया। नमस्कार, ओम शांति। अलका रघुवंशी जी हमारे बीच में नहीं है। ये विचार करके ही बहुत ही अजीब लग रहा है। एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्तित्व, हंसमुख और कभी ना हार मानने वाली, ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं आपके लाइफ में। और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे उनसे नज़दीकी से जुड़ने में ये मुझे मौका मिला। उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। अनेक बार एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर उनको समझने का और उनके साथ समय व्यतीत करने का मौका मिला। शायद ही ऐसे कोई बात हो जिसका बहुत ही सटीक जवाब
मैं कहूँगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, मेरे मन में तो कितने प्रश्न होते हैं, और जब भी मैंने उनसे कुछ पूछा है तो इतनी क्लैरिटी से उनका जवाब, और वो रास्ता क्यों सही है उसको एनालिटिकली बात करना, बहुत ही कमाल। मैं कहूँगी कि शी वॉज ब्लेस्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। एहसास में जब हम लोग काम कर रहे थे तब मैंने देखा कि कितना उनमें बिल्कुल जैसे कि 24 घंटे वो उसी पर ही मनन कर रही हैं। एवरी फाइनर डिटेल, एवरी फाइन डिटेल हैड बीन वर्कड आउट। और शायद ही ऐसा कोई पक्ष है कला का जिसके बारे में वो फ्लुएंटली नहीं बात कर सकती थी। ये बहुत ही कमाल की बात है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी अलका रघुवंशी जी हमारे बीच में नहीं है। हालांकि हमें अंदर से दुख होता है कि उनसे अब मुलाकात नहीं हो पाएगी, पर वो अभी जहाँ पर भी हैं बहुत खुशी में हैं, ऐसे ही मेरा विश्वास है। और ईश्वर उनके संपूर्ण परिवार को ये शक्ति दे इतने बड़े लॉस को बेयर करने के लिए। बहुत याद आएंगी आप अलका जी। नमस्कार।
eldest of us cousin sisters, and she was my mother's favorite, and she got to try out all the makeup, and my mother would discuss all the saris that my mother would collect from everywhere in India, because my mother loved to travel. And I also got to go shopping with her while we all stayed back and played, and which is one of Alka's strengths, and something that defines her, that she took the best that was there in her environment and developed it, so much so that she became such a interesting sari designer in her later life, and made it into a passion which she shared with everybody. She was a very fine theatre critic and a connoisseur, and in fact somebody who could and did understand the classical traditions in music and dance, and she was very vivacious, and she drew people to her. And this is one of the very many memories that I have of her as a person. And she drew, and she inscribed herself on the memory of her friends and her acquaintances, and especially of her family. And we will miss her and her liveliness all our lives. Thank you, Alka, for being in our lives. मैंने कभी सोचा नहीं था, अलका, तुम इस तरह से मेरी जिंदगी से निकल जाओगी, यह कल्पनीय है, बर्दाश्त से बाहर है। अलका एक बड़ा संस्थान थी, लेकिन अपने शरीर से परेशान थी। अलका को भूल पाना मेरे बस की बात नहीं, बल्कि अलका की जिंदगी को छू कर निकल जाने वाले लोग भी शायद ही कभी अलका जैसे व्यक्तित्व को भूल पाए। अलका, तुम बेहद याद आओगी, हमेशा याद आओगी। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह तुम्हारे को अपनी शरण में ले। तुम जैसे लोग इस संसार में होते हैं तो ही संसार भली भांति चल पाता है। ओम शांति शांति शांति। Remembering Alka. Alka was my little sister. Prefixing or suffixing cousin would definitely hurt me, as well as the departed pious soul. Because no Raksha Bandhan was complete without we seeing each other and performing the ceremony of the day. Alka stood true to her name. She was a diamond, crystal clear and pure at heart. She had more shades of life than what she had in her palette or depicted in her paintings. Alka could mesmerize one with her immense depth of knowledge on every subject. You open up a topic and would find an encyclopedia just across the table. The world knows her as an author, as an art curator, as an artist, a writer, a journalist. But we grew up together. And we used to cherish childhood memories whenever we had time to share. Alka was a visionary in her own right. She was interested in Indian dance, art, music, literature, right from an early age. I remember
Once she requested me to accompany her to Kamani Auditorium because there was a concert of Pandit Kumar Gandham. And perhaps Fufaji was on night shift duty, who was in Indian Express at that time. It was quite surprising for me. A 10th standard girl asking to attend a concert of Kumar Gandham. You may call it gene inheritance. Because, as I know, her father's family had a repertoire of some of the finest, most historical classic singers. Surinder Kaur was Alka's bua, and Alka's dadi used to write lyrics for her. My Fufa ji, Alka's father, he was a fine journalist who played a pivoting role in paving a path for Alka into the world of journalism. He was a commendable linguist who could speak and write English, Urdu, Hindi, Punjabi, and Persian. Alka was so widely loved and respected that it was not surprising for me when Manisha mentioned that more than 4,000 calls and messages she received in the name of Alka when she passed away. Paying tribute to Alka in words is far, far beyond my vocabulary, and definitely it's difficult to imbibe emotions into words for me also. I pray to the Almighty that my little angel, my little sister, rest in peace. Om Shanti Om. Ehsaas was one of the biggest live installations of art that Alka designed and curated. Ehsaas, as the name suggests, was something about feeling. Something, the paintings that were hung on the wall were brought by Alka onto the saris, onto stoles, onto bags. And these were things that were walking, talking installations. The greatest people and the legends of the Indian arts walked with Alka on the ramp. 5 painters, Sridhar Iyer, Niren Sen Gupta, Alka Raghuvanshi, Sanjay Bhattacharya, and myself. This was the team whose paintings were used onto Ehsaas and the entire work as the journey continued. Ehsaas. Ehsaas has been Alka ji's dream project. She has combined art and textiles. She has been an inspiration for many, many young ladies to wear saris. Her design on her saris are exclusive and exotic. Do you own one? I do.
represent the magic of saris, the oldest online sari group. Alka strayed into the magic of saris one evening when she was browsing Facebook, and so delighted was she about the discussion that was happening around Odisha saris, the theme for the month, that she promptly wrote a piece on it on the eve of Rath Yatra. She came into the magic of saris with a bang, with her Surya Chakra saris, and looked absolutely resplendent in it. And she stayed. For 6 years, she inspired, encouraged, entertained, delighted members in equal measure with her exquisite collection of saris, her sari stories, and her depth of knowledge about weaves, which she very generously shared. She was our go-to person for any sari related information and sari trivia as well. She has worked alongside to take magic of sari to where it has reached today and give it its current stature. There were times when she would tell us to carry a certain theme, like theme from theme based on Northeast, because she felt saris from that region were a little underrepresented. Then when we were doing the theme around Kashmir, she wanted us to include shawls, saying that a lot of workmanship actually got done on shawls, and was generous enough to open out her entire Pashmina collection for us to feature that month. Both Sunita and I feel a deep sense of personal loss. She was both a mentor when it came to our sari group and saris, as well as a dear friend. But we promise you, Alka, that we will carry the magic of saris forward and continue to spread its magic. Rest in peace, my friend. The loss of Alka ji has been a big blow to the art world. She was wonderful with her work. She was such a happy, vibrant, and cheerful person that whenever she would walk into the room, it would entirely light up the entire place. She was India's first trained curator, and she trained at the Goldsmith College in London. She also trained in the Museum of Modern Arts, and she has also curated a few exhibitions. Ehsaas was one such exhibition in 2012, where a number of artists have walked the ramp and artwork have been replicated on saris, ties and bags. She used to promote weavers, and she was working towards the welfare of the weavers. She has mentored a number of artists also. Alka ji has been such a wonderful friend to me, and each and every one of us who knew her will remember her and for all times to come. My memory of Alka ji goes back to say around 7 years back, and this because we were a part of the mutual sari group. So one day I was just browsing through the Instagram or the Facebook, and I came across the saris which she had designed, and I was very, very intrigued. I just called, I took the number because the number was posted there, and I called her and I said, Alka ji? She said yes. And I said, Alka ji, I want to come across to your house to have a peep at your saris. And she said, oh wonderful, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? And इसी लहजे में उन्होंने बोला था कि ऐसा क्यों नहीं करती हो, तुम आओ और मेरे साथ तुम खाना भी खा लेना, lunch. That was our first meeting. Lunch, I think, was just a bahana, and we sat down, we laughed. It was not as if I was meeting her for the first time, but something that I had known her for years. That was Alka ji for me. Full of life, full of laughter, full of love for everyone. She found, she found life so joyful that she could enjoy the life in small pieces, but yet along with her friends, along with her family. We met so many times after that, and every time I met her, she had the twinkle in her eyes, and she always said, Anu, how do you like this? Oh, that's wonderful. And I think that is a memory of Alka ji I'm going to cherish forever, because she was just not one friend or an acquaintance for me. She was a story, and a story of joy, story of a legend, and story which will be remembered for generations after. Bless you, Alka ji. I'm sure wherever you are, it's a better place, and God bless you. Thank you. नमस्कार,
It is so difficult, so hard to believe that Alka Raghuvanshi ji is not with us. And I have to say few words for her. She was a charming lady, dynamic, and she had the vision also. She was full of life. She was full of life, and she was a catalyst who was connecting everyone with each other. Also, like she did fabulous exhibitions. Then not only exhibitions, then this stole cakewalk with saris and stoles. She invited all the artists. Nobody can imagine that everybody could have come together so much like this. This was her effort, and this was her imagination, her work. So she also, I escaped the first one, then second one she said that you have to be there. With love she used to call me Lucky Muscat. So then she invited me at home, and then she gave me this stole, and then the things were done, and she said that you have to come and you will be there. So she put the name, and photographs were taken, and I was there. So she had the vision also. She will always be with us. So what we have to do, we have to keep her spirit alive. I hope she is in peace.
Alka ji's love for music was divine. She loved arts, music, dance. Artists were her friends. वो कहती हैं कि आप तानसेन नहीं बन सकते पर कानसेन तो बन सकते हैं. You need to be good audience to appreciate good art. Let's celebrate Alka Raghuvanshi ji. Today I pledge that the work you have left undone and your legacy will be followed and continued. We remember you in our thoughts and in our prayers. May you stay blessed wherever you are.
जोगीन जंगम मुनि दरवेशवा जोगीन जंगम मुनि दरवेशवा आदीनांतन काल कलेसवा दास कबीर ले आए संद सवा दास कबीर ले आए संद सबद गए चलो मार देसुआ जहाँ वास आयो अमर देसुआ जावास आयो अमर देसुआ